السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پہلی تاریخ کو تنخواہوں کی ادائیگی، آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمین سے کیے گئے وعدے کی تکمیل۔ کارپوریشن، سوسائٹیز اور یونیورسٹیز اور دیگر سرکاری ملحقہ اداروں کے ملازمین کو راحت۔ شہری حدود میں 1,00,000 اندرمہ مکانات کی تعمیر کے لیے حکومت جلد ٹینڈرز جاری کرے گی۔ حصول اراضی کا عمل 2 یا 3 دن میں مکمل ہوگا۔ غریب خاندانوں کو ان کے علاقوں میں ہی رہائش فراہم کرنے حکومت پرعزم۔ تلنگانہ بھون سے گن پارک تک ڈرامائی واقعات، گروکل اداروں میں بدعنوانیوں کے الزامات ثابت کریں۔ بی آر ایس سے کانگریس کا مطالبہ، بحث کے لیے آنے سے روکا گیا ہے۔ ہریش راؤ کا الزام۔ اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے ادویات کے نام پر گانجے کی سپلائی کا بین، ریاستی ریکٹ بے نقاب۔ 21 شہروں میں نیٹ ورک کا انکشاف۔ حیدرآباد نارکوٹک ونگ کی بڑی کارروائی، 4 افراد گرفتار۔ بکرے کے گوشت میں بیف کی ملاوٹ کا ریکٹ بے نقاب۔ حبیب نگر حدود میں ایچ فاسٹ اور پولیس کا دھاوا، بھاری مقدار میں ملاوٹی گوشت ضبط۔ اور فرضی ویزے پر کویت جانے کی کوشش، آندھرا پردیش کی 20 خواتین کو حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ ایجنٹس کے خلاف تحقیقات جاری۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ۔ کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی۔ کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم۔ کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز۔ کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ۔ کیو میکس RF آرکیٹ، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے معاملے میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ریاست کے سرکاری محکموں، کارپوریشنوں، سوسائٹیوں، یونیورسٹیوں اور دیگر سرکاری الحاق شدہ اداروں میں کام کرنے والے آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمین کو اس ماہ کی پہلی تاریخ کو ہی تنخواہیں جاری کر دی گئی ہیں۔
वज़ीर आला की हिदायत पर महकमे खजाना ने 4 शुबे को मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी की। तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर की वजह से मुलाजिमीन को दरपेश मुश्किलात का इदराक करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मामले को संजीदगी से लिया। उन्होंने हाल ही में हुक्काम को हिदायत दी थी कि रेगुलर मुलाजिमीन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग और एजाजिया की बुनियाद पर काम करने वाले अमले को भी हर माह बगैर किसी ताखीर के तनख्वाहें फराहम की जाएं। वज़ीर आला के अहकामात पर अमल दरामद के हिस्से के तौर पर महकमे खजाना ने हाल ही में तमाम महकमों और विंग्स को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में वाज़े रहनुमा खतूत दिए गए थे कि तनख्वाहों के बिलों की पेशकश, जांच, ऑडिट और मंजूरी में ताखीर को रोकने के लिए पेशगी इक़दामात किए जाएं। महकमे खजाना ने हिदायत दी थी कि हर माह की 25 तारीख तक तनख्वाहों और मुआवजे के बिल ट्रेजरी, पे एंड अकाउंट्स और अकाउंट्स के शोबों में जमा कराए जाएं। यह भी वाज़े किया गया था कि महीने के आखिरी वर्किंग डे काम के दिन तक जांच, ऑडिट और मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाना चाहिए। वज़ीर आला ने 4 शुबे के रोज़ महकमे खजाना के हुक्काम से इन अहकामात पर अमल दरामद और तनख्वाहों की अदायगी की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। महकमे खजाना के हुक्काम ने वज़ीर आला को रिपोर्ट दी कि जिन तमाम महकमों के बिल मौसूल हुए थे उनके मुलाजिमीन की तनख्वाहें 4 शुबे को उनके खातों में जमा कर दी गई हैं। रियासती वज़ीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत कोर हुदूद में 1 लाख इंदिरा मकानात की तामीर के लिए जल्द टेंडर्स जारी करेगी, जबकि इस मंसूबे के लिए ज़मीन के हुसूल का अमल आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्का है। उन्होंने कहा कि 19 असम्बली हल्कों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर हल्के में 500 से 1000 मकानात तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद मरहलेवार मज़ीद मकानात मंजूर किए जाएंगे। वज़ीर के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत गरीब ख़ानदानों को उनके अपने इलाकों में रिहाइश फराम करने के लिए पुरअज़्म है और शहरी इलाकों में कीमती ज़मीन होने के बावजूद मुस्तहिक़ीन को वहीं मकानात दिए जाएंगे। पोंगुलेटी ने मज़ीद कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के ज़रिए हर गरीब ख़ानदान को अपना घर फराहम करना हुकूमत का मकसद है और झोंपड़ी से पाक तेलंगाना के हदफ को मरहलावार पूरा किया जाएगा। इस मौके पर दीगर वज़रा ने भी खिताब किया। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने गन पार्क में वज़रा अडोलरी लक्ष्मण कुमार, अजहरुद्दीन और दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुरुकुल इदारों में बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाने वाले BRS के साबिक़ वज़रा और RS प्रवीण कुमार अपने दावों को सबूतों के साथ साबित करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले पर खुली बहस के लिए गन पार्क और ज़रूरत पड़ने पर प्रेस क्लब में भी जाने तैयार है, ताहम बहस के लिए साबिक़ वज़रा खुद आएं और सबूत पेश करें। वज़ीर ने कहा कि गुरुकुल इदारों में टेंडर्स की जुमला मालियत 1143 करोड़ रुपए है, जिनमें 687.77 करोड़ रुपए टेंडर्स और 455.23 करोड़ रुपए सरकारी इदारों के ज़रिए खर्च किए गए। ऐसे में 2000 या 3000 करोड़ रुपए की बदउनवानी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि तमाम टेंडर्स मुकम्मल शफ़ाफ़ियत के साथ दिए गए हैं और अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो अवाम के सामने पेश किए जाएं। उन्होंने सवाल किया कि क्या SC, ST और अक़लियती तलबा को मेयारी यूनिफॉर्म नहीं मिलने चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर हुकूमत की बदउनवानी साबित हो जाए तो वो वजारत से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि RS प्रवीण कुमार के सोशल वेलफेयर महकमे में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात कराने के लिए वज़ीर आला को ख़त लिखा जाएगा। वज़ीर ने साबिक़ वज़ीर आला के CR से मुतालबा किया कि वो असम्बली में आकर इस मामले पर बहस करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत गरीबों की फलाह और शफ़ाफ हुक्मरानी के लिए काम कर रही है और गुरुकुल इदारों के तमाम वाजिबात ग्रीन चैनल के ज़रिए अदा किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत BRS की मुबैना गुंडागर्दी से खौफज़दा नहीं होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाने वाली BRS खुद खुली बहस से पीछे हट गई। हालांकि हुकूमत की जानिब से वज़रा गन पार्क पहुंचकर 1 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, इसलिए 2.5 साल में हुकूमत गिराने की बातें बेबुनियाद हैं।
वजीर ने खबरदार किया कि अगर बीआरएस ने इसी तर्ज सियासत को जारी रखा तो मुस्तकबिल में इसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ भी हासिल नहीं होगा। रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव ने कहा कि उन्होंने केटीआर के बयानात पर जवाब देते हुए यह हकीकत सामने रखी कि बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में 7 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद का कर्ज लिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान पर रद्द अमल देते हुए हरीश राव ने गन पार्क की यादगार आने की बात की, इसलिए वो केटीआर और हरीश राव दोनों से अपील करते हैं कि वो एक साथ गन पार्क आएँ। वजीर ने कहा कि वो भी गन पार्क पहुंच रहे हैं और अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद के साथ उनके चैलेंज का जवाब देंगे। उन्होंने सवाल किया कि एक शख्स एक जगह और दूसरा दूसरी जगह बात क्यों कर रहा है, दोनों एक साथ गन पार्क आएँ, वो दोनों को एक ही वक्त में जवाब देंगे। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि अगर हुकूमत ने चैलेंज दिया है तो रियासत के कर्जों का मुकम्मल हिसाब पेश करने और महकमे तालीम में मुबैना बदनवानी पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब वो बहस के लिए आने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें रोका जा रहा है, और हरीश राव ने कहा कि उन्होंने तीनों वज़रा से फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कॉल वसूल नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पुलिस को इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि मीडिया और रियासत के अवाम को गवाह बनाकर हुकूमत की हकीकत और तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। बादशाह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 8 तारीखी कमानों की मरम्मत और तज़यीन के लिए मंजूरी दी गई है। HMDA फंड्स के तहत ये काम मुकम्मल किए जाएंगे। कंसल्टेंसी को मुकर्रर करने और टेंडर्स के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जिन तारीख और कदीम कमानों की तज़यीन और मरम्मत की जाएगी, इनमें रानीगंज की कमान के लिए 63 लाख, शेख फैज़ की कमान के लिए 82 लाख, छत्ता बाजार की कमान के लिए 1 करोड़ 40 लाख, दीवान देवड़ी कमान के लिए 2 करोड़, दबीरपुरा कमान के लिए 1 करोड़ 14 लाख, हुसैनी आलम कमान के लिए 55 लाख, दीवान देवड़ी कमान के लिए 2 करोड़ 38 लाख और हशमतगंज कमान के लिए 2 करोड़ 94 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जुमला 11 करोड़ 86 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तारीखी कमानों की निगहदाश्त व तज़यीन के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी। जुमला 8 कमानों की तज़यीन के लिए अब मंजूरी दी जा चुकी है। मरकजी वजीर और बीजेपी रहनुमा बंडी संजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और बीआरएस क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों जमातों की सियासी ड्रामाबाजी बिग बॉस शो की याद दिलाती है और ऐसा लगता है जैसे हर हफ्ते पहले से रिहर्सल करके अवाम के सामने अदाकारी की जा रही हो। उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलने पर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए तो दोनों जमातें इसकी हकदार होंगी। उनका कहना था कि तेलंगाना के अवाम सब कुछ देख रहे हैं और इन सियासी ड्रामों पर हंस रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव की क़यादत में तारीख, वक्त और मुकाम तय किया जाएगा जहां गुरुकुल टेंडर्स, रियासती कर्जों, बदनवानी और बेज़ाब्तगियों समेत तमाम अवामी मसाइल पर खुली बहस की जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस से सवाल किया कि क्या वो अवाम के सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बहस में मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना की तरक्की के लिए फराहम किए गए फंड्स और फलाही मंसूबों पर भी बात होनी चाहिए। बंडी संजय ने दावा किया कि अगर कांग्रेस और बीआरएस इसी तरह सियासी ड्रामे जारी रखेंगे तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम भी रियासत में डबल इंजन सरकार चाहते हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अवामी शिकायत की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली ने कदीम मलकपेट डिवीज़न के शंकर नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। अहमद बलाला ने अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई पर जोर दिया।
इस मौके पर साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुल्लाह शफी के अलावा पार्टी के सुदूर और मुतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरा में SIR के लिए अवामी शऊर बेदारी जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने रणमस्तपुरा डिवीजन में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और SIR से मुतालिक रहनुमाई की। रुकन असम्बली ने अवाम से अपील की है कि अगर फॉर्म्स अभी तक नहीं मिले हैं तो फॉर्म्स फौरी हासिल करें और मोहतात तौर पर इसे पुर करते हुए BLOs के हवाले करें। रुकन असम्बली के हमरा साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर और ARO अरुणा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे के अंदर SIR के ताल्लुक से सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर घर घर जाकर ये आवाम से पूछा गया कि आपको फॉर्म मिला है या नहीं मिला है, और कई जगहों के ऊपर फॉर्म पहुँचे हैं और कई जगहों के ऊपर पहुँचना बाकी है। तो लिहाजा आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे डिप्टी कमिश्नर अरुणा जो ARO है बहादुरपुरा के, उन्होंने और हमारे बाला कृष्णा MRO बहादुरपुरा और दीगर ऑफिसर्स के हमरा आज पूरा एरिया के अंदर फिरकर घर घर फिरकर हर आदमी से पूछा गया कि आप फॉर्म हासिल किए या नहीं। जिसको भी फॉर्म नहीं मिला है वो इमीडिएट फॉर्म वहाँ से फराहम किया गया है। तो लिहाजा मैं इस मौके के ऊपर आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो SIR का काम चल रहा है, इसके अंदर अभी 41% ही काम मुकम्मिल हुआ है, अभी तकरीबन 59% काम बाकी है। तो लिहाजा आवाम से गुजारिश करते हैं कि जो हजरात अभी फॉर्म हासिल नहीं किए SIR का वो इमीडिएट फॉर्म को हासिल करें। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने जुमेरात को जोनल कमिश्नर राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसिल ने जोनल कमिश्नर को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब भी हवाले किया। तरक्याती कामों की तकमील से मुतालिक सदर मजलिस के प्याम से भी जोनल कमिश्नर को वाकिफ करवाया गया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की टीमों ने जुमेरात को मदीना सर्कल से जू पार्क तक फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। बलदी हुकाम का कहना था कि फुटपाथ पर कायम तामीरात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल थे। मुसलसल शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर गैर मजाज तामीरात से सड़क तंग हो रही थी, जिसकी वजह से यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। अदलिया की जानिब से भी फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। इस मौके पर पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और गुडी मलकापुर पुलिस ने स्पीड पोस्ट के जरिए चलाए जा रहे रियासती गांजा सरबराह करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने बताया कि 21 शहरों में स्पीड पोस्ट के जरिए गांजा सरबराह किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस रैकेट के अहम सरगना झारखंड के मुतवत्तिन सत्यम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सत्यम अपने साथियों के साथ मिलकर 21 शहरों में यह रैकेट चला रहा था। इस रैकेट को यौमिया 80 ता 100 ऑर्डर मिला करते थे। पुलिस ने हैदराबाद में मौजूद सुशांत व्यास और लड्डू पर नजर रखनी शुरू की थी, जिसके बाद इस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने सत्यम मिश्रा के अलावा सज्जलम मिश्रा, राहुल झा, सचिन मिश्रा और संतोष पंडित को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सत्यम मिश्रा आबाई गांव में गांजे की काश्त किया करता था और अपनी टोली की मदद से हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु सरबराह किया करता था। पोस्टल महकमे को अद्वियात बताकर स्पीड पोस्ट के जरिए गांजा सरबराह किया जा रहा था। ये टोली महाना 4 ता 5 करोड़ का कारोबार कर रही थी। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने जब एक मुश्तबा पार्सल की जांच की तो इसमें गांजा पाया गया। तहकीकात के बाद इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। शहर में इन दिनों H-Fast पुलिस और बलदिया की जानिब से बड़े पैमाने पर मिलावटी अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है
और कार्रवाई भी की जा रही है। अब हबीबनगर के हुदूद में CCS और एच फास्ट ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो मटन के नाम पर बीफ होटलों को सरबराह कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान के नाम उस्मान और जहांगीर बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को इन 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से मिलावटी 50 किलो गोश्त को जब्त किया गया। दोनों मुलजमीन को मजीद कार्रवाई के लिए हबीबनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बकरे के गोश्त में बीफ मिलाया करते थे और इसे कई होटल्स को सरबराह किया करते थे। अभी उनसे पूछताछ होनी है कि आखिर किन होटल्स को यह मिलावटी गोश्त सरबराह किया जा रहा था। ये मिलावटी गोश्त की सरबराही अवाम के साथ धोखा है। इन होटल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस तरह की मिलावटी अशिया का इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों को धोखा देते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 4 ता 5 साल की उम्र के बच्चे का अगवा कर लिया गया है। बताया जाता है कि 20 जून को यह वाकया पेश आया था और अब इसका वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक बच्चे की नानी सरूपा घर में झगड़े के बाद अपने नवासे निखिल को लेकर सिकंदराबाद स्टेशन गई और वहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास सो रही थी। जब वो बेदार हुई तो बच्चा गायब था। इसने घर आकर अपनी बेटी राजेश्वरी को तफसीलात बताईं और पुलिस में केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी में एक शख्स निखिल को ले जाते हुए देखा गया है। अभी तक बच्चे को बाजियाब नहीं किया जा सका है। हैदराबाद एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली 20 से जायद खवातीन को फर्जी वीजे पर बराए ओमान कुवैत जाने की कोशिश के दौरान तहवील में ले लिया है। इन खवातीन का ताल्लुक मगरबी गोदावरी से बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक इमिग्रेशन मरहले के दौरान जब इन खवातीन के वीज़े की जांच की गई तो ये फर्जी पाया गया। पूछताछ पर खवातीन ने बताया कि एजेंट ने उनके साथ धोखा किया है और उन्हें यह दस्तावेजात टिकट के साथ हवाले किए थे। खवातीन ओमान एयर की परवाज से मस्कत जाने की कोशिश कर रही थीं। तहवील में ली गई खवातीन को शमशाबाद एयरपोर्ट आउटपोस्ट पुलिस के हवाले किया गया है। ACP शमशाबाद V श्रीकांत गौड़ ने बताया कि 20 खवातीन जो बराहे ओमान कुवैत जाना चाहती थीं, जब उनके दस्तावेजात की जांच की गई तो वो फर्जी पाए गए। इन खवातीन को टूरिस्ट वीज़ा फराहम किया गया लेकिन उन्हें वर्क वीज़ा पर भेजा जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एजेंट और सब एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रंगारेड्डी आदिबटला नादरगुल में वाक़ई टाटा एडवांस सिस्टम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के यूनिट में आग लगने से सनसनी देखी गई। आग लगते ही यूनिट में मौजूद अमले को बाहर निकाला गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। निजामाबाद जिले के रेंजाल मंडल में बेकाबू कार बरखी खंबे से टकराकर खेत में गिर गई। ताहम कार ड्राइवर शीशा तोड़कर बच निकलने में कामयाब रहा। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। ड्राइवर को मामूली चोट बताई गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीजबाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें।
آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पहली तारीख को तनख्वाहों की अदायगी, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से किए गए वादे की तकमील। कॉरपोरेशन, सोसाइटीज और यूनिवर्सिटीज और दीगर सरकारी मुल्हका इदारों के मुलाजमीन को राहत। शहरी हुदूद में 1 लाख इंद्रमह मकानात की तामीर के लिए हुकूमत जल्द टेंडर्स जारी करेगी। हुसूल आराजी का अमल 2 या 3 दिन में मुकम्मल होगा। गरीब खानदानों को उनके इलाकों में ही रिहाइश फराहम करने हुकूमत पुरअज़्म। तेलंगाना भवन से गन पार्क तक ड्रामाई वाक़यात, गुरुकुल और इदारों में बदउनवानियों के इल्जामात साबित करें। बीआरएस से कांग्रेस का मुतालिबा, बहस के लिए आने से रोका गया है, हरीश राव का इल्जाम। स्पीड पोस्ट के जरिए अद्वियात के नाम पर गांजे की सप्लाई का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 21 शहरों में नेटवर्क का इंकशाफ। हैदराबाद नारकोटिक विंग की बड़ी कार्रवाई, 4 अफराद गिरफ्तार। बकरे के गोश्त में बीफ की मिलावट का रैकेट बेनकाब। हबीबनगर हुदूद में एच फास्ट और पुलिस का धावा, भारी मिकदार में मिलावटी गोश्त जब्त। और फर्जी वीजे पर कुवैत जाने की कोशिश, आंध्र प्रदेश की 20 खवातीन को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एजेंट्स के खिलाफ तहकीकात जारी। नाज़रीन, इसी के साथ 4 टीवी खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 टीवी न्यूज़। खुदा हाफिज।